Yes, welcome students. Today our topic of discussion is circular current loop as a magnetic dipole. So we already know that a magnet which has north and south pole, which is act as a dipole. So likely a current carrying circular loop will behave like a magnetic dipole, like a magnet. So here we already know that if a current passing in a conductor. So this is our conductor and its radius is r. We need to find out the magnetic field at a distance of x. So we already proved that in earlier sections. At the point of P, our magnetic field is equal to B is equal to mu naught I into r square divided by 2 times of x square plus r square raised to the power 3 by 2. So this is our expression. So this is the derivations we already did in earlier section. So at a distance of x, this will be our magnetic fields. So this current loop behave like a magnet. एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. इफ इट इज अ मैग्नेट, so it has north and south pole होना चाहिए इसका. And now here the direction of the magnetic field of this current carrying loop at the point of P is equal to along the axis of this one. अगर मेरे पास current, if I look from the right hand side, अगर right hand side से देखता हूँ तो अगर current की direction इस पर एंटी क्लॉकवाइज है तो by the right hand thumb rule, तो right hand thumb rule के अनुसार if the current passing in the direction of our my fingers, right finger along the fingers of the right hand, the thumb indicating the direction of the magnetic field. Here the magnetic field की direction along the axis होगा. ये axis of the, ये axis मेरे पास है and OP the axis and it is normal to the plane of this circles. तो यहाँ पे magnetic field यहाँ पे मेरे पास आ जाता है along this one and जिसका expression मेरे पास ये है. तो this is the value of this ones. Now अब इसमें हम कुछ approximation कर लेते हैं. That approximation is, let us suppose that अगर x मेरे पास बहुत दूर है, सो हमें प्रूव करना है कि हाउ दिस करंट कैरिंग लूप बिहेव एज ए मैग्नेट. सो हमें क्या करना है, तो लेट अस सपोज x ग्रेटर r. अगर मेरे पास x r से बहुत बड़ा है तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर पर आर स्क्वायर टर्म्स है इसको टेंस टू 0 कर लेते हैं. उसका वैल्यूज हम हटा देते हैं, उसको हटा देते हैं. अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल बिकम म्यू नॉट आई r square divided by 2 times of here x square raised to the power 3 by 2. ये 3 by 2 कैंसिल आउट हो जाता, तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास बन जाता है म्यू नॉट आई r square डिवाइडेड बाई 2x क्यूब. ये मेरे पास है. एंड नाउ एंड इस सर्कुलर लूप का मेरे पास जो एरिया मेरे पास आ जाता है विच इज पाई r square and we also net dipole moment. तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो एक्सप्रेशन है मेरे पास, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम यहाँ पे m से दिखाएंगे विच इज I इंटू ए मीन्स दिस वन एरिया ऑफ दिस सर्कुलर लूप. सो हियर तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते भी, रेक्टिफाई दिस वन. फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट अपॉन 2 पाई से मैंने मल्टीप्लाइड किया, तो हियर इट बिकम्स I टाइम्स ऑफ ए pi r square. This is pi r square is the area of the loop divided by x cube. तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन हो जाता है. नाउ तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एंड I टाइम्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय x क्यूब. सो यहाँ पे मेरे पास जो जनरल एक्सप्रेशन मेरे पास हो जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. इफ आई मल्टीप्लाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय 2 इट बिकम्स mu naught upon 4 pi into 2 I into a divided by x cube. We already know that I into a will be the magnetic dipole moment. So mu naught divided by 4 pi and this expression becomes twice m divided by x cube. तो ये मेरे पास हो जाता है. This is the magnetic fields at the point of P along the axis of the
सर्कुलर लूप के एक्सिस पे इतना मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है. एंड नाउ इफ आई कंपेयर दिस, इफ आई रिप्रेजेंट दिस बी एक्सियल, तो एक्सियल पॉइंट में इतना मैग्नेटिक फील्ड है. नाउ वी हैव ऑल द टर्म्स इन magnetism as the terms in the electrostatics. So here in electrostatics, we already know that in a dipole, तो वहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू एंड प्लस क्यू. एंड तो अगर इफ आई नीड टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ पी एट ए डिस्टेंस ऑफ, तो यहाँ से x डिस्टेंस पे अगर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहाँ पे मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, तो अलोंग द एक्सिस, ये मेरे पास ए एंड बी पॉइंट में, ए एंड सी पॉइंट में मैंने क्या करा, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, दीज आर द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दे मेक्स इलेक्ट्रिक डाइपोल्स. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस हुआ करती थी यहाँ पे, दैट दिस वैल्यू इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस पी डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब. ये मेरे पास एक्सप्रेशन है. अगर इससे हम कंपेयर करते हैं तो मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह मेरे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है. एंड ऑल एक्सप्रेशन इज सेम ऑन 2p. तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास द एक्सप्रेशन इज m is equivalent to p, and here mu naught upon 4 pi, mu naught upon 4 pi is equivalent to 1/4 pi epsilon naught, 1/4 pi epsilon naught. अगर इसको सिंप्लीफाइड करते हैं तो we will get mu naught. सो ये मेरे पास आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे जो हमारे पास 1/एप्सिलॉन नॉट होता है, तो मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट होता है. एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज p, तो मैग्नेटिक डाइपोल मेरे पास m होता है, तो वी गेट दिस वैल्यू. सो इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में जो मेरे पास एक्सप्रेशन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड पे ये मेरा एक्सप्रेशन है. सो लाइकली वी विल गेट एक्सप्रेशंस फॉर द मैग्नेटिक डाइपोल इन द प्लेन ऑफ दिस सर्कुलर लूप. अब जैसे कि मेरे पास डाइपोल था, दिस इज माइनस क्यू टू प्लस क्यू, एंड इसके जो डाइपोल इसके जो इक्वेटोरियल बाइसेक्टर ऑफ द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो उसके पॉइंट में अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं, तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन x क्यूब होता है. लाइकली वी विल गेट द सेम वैल्यूज इन द प्लेन ऑफ द दिस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. सो लाइकली हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल्स है. एंड दिस इज ये जो पॉइंट मेरे पास है डाइपोल एक्सिस है, डाइपोल एक्सिस माइनस क्यू टू प्लस क्यू, एंड इसका बाइसेक्टर है, दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस वन. सो हियर so this is minus q is here and plus a the point of this one, m is the midpoint. m is the ये मेरे पास जो लाइन है मेरे पास, ठीक है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. यहाँ पे मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डाइपोल एक्सिस माइनस क्यू टू प्लस क्यू होती है. इधर की तरफ मेरे पास p का डायरेक्शन है. p मीन्स यहाँ पे p विल बी द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. P is the electric dipole moment, and the magnetic field at the point of P is just opposite of this one. तो यहाँ पे मेरे पास इसको बोला जाता है इक्वेटोरियल पॉइंट में. इक्वेटोरियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वेटोरियल, तो मेरे पास हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल P डिवाइडेड बाय, एंड अगर ये डिस्टेंस मेरे पास x हो जाता है तो x की पावर 3, तो ये मेरे पास हो जाता है दिस इज द x की पावर 3. and here the same thing is x greater twice a, तो twice a यहाँ पे मेरे पास क्या, ठीक है, दिस इज लेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो इसका, तो उस केस में अप्रोक्सीमेटली मेरे पास ये वैल्यू मेरे पास हो जाती है. सेम फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है किसके लिए, अगर इसके भी हम क्या करें, इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर
मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। सो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा यहाँ पे, तो 1/4 को रिप्लेस कर देंगे म्यू नॉट से। तो इसकी जगह ये रख दूंगा, पी की जगह एम रख दूंगा। वी विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड्स इन द प्लेन ऑफ द सर्कुलर लूप। मेरे पास सर्कुलर लूप है, इसका प्लेन पे, इसके प्लेन पे, यानी कि मेरे पास कहीं यहाँ पे मेरे को निकालने, सपोज दिस इज द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ दिस प्लेन। तो ये मेरे पास हो, तो यहाँ पे अगर हमें क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करें, तो यहाँ पे डाइपोल एक्सिस इधर की तरफ है, तो यहाँ पे तो सेम है मेरे पास। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम ए टू बी था, इस डायरेक्शन में था, पी की डायरेक्शन मेरे पास अलोंग दिस वन है। सो इधर पी की, दिस इज वेक्टर, पी की डायरेक्शन अलोंग दिस वन है, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में मेरे पास क्या हो जाता है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड्स इन द इक्वेटोरियल पॉइंट। तो यहाँ पे इट्स वैल्यू बिकम्स हियर। सो हमें क्या करना है, सिंपली इप्सिलॉन नॉट विच इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इसकी जगह हम क्या कर देंगे, तो म्यू नॉट रख देंगे। तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आ जाता है, तो B इज इक्वल टू हियर, दिस पॉइंट में मेरे पास B आ जाता है, B इज इक्वल टू 1 म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, एंड P की जगह हम रख देते हैं M डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। तो ये मेरे पास हो जाता है, दिस इज द सपोज OM, ठीक है। यहाँ पे OM को क्या कर लिया मैंने, X मान लिया, तो OM को मैंने X मान लिया। तो ऑब्वियसली इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा, इफ वी कंपेयर विद इक्वेटोरियल्स इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन द इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो मेरे पास जो डायरेक्शन मेरे पास आ जाए नीचे पे, इस डायरेक्शन में, क्योंकि मेरे पास करंट इसमें ऐसे जा रहा है, तो M की डायरेक्शन अलोंग दिस वन है। सो M है द डायरेक्शन, सो यहाँ पे अलोंग द एक्सिस हो गया, यानी कि मेरे पास मैग्नेटिक डाइपोल M की डायरेक्शन मेरे पास अलोंग दिस वन है। इस वाले केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसकी डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगी। So now this is the value. This is the value, and we can express this in vector format में इसको लिख सकते हैं, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एंड माइनस m vector divided by x cube. This is the expression, this one, this is the direction of B equatorial कह सकते हैं हम लोग। तो B equatorial के वैल्यू इस डायरेक्शन में हो जाएगा, this is the direction of the B equatorial along this one, and this is the direction of the B axial point. B axial point. तो ये है, this is simple expressions. If we compare it with the terms, with the formulas, and with the expressions in the electric fields, we will get easily these expressions also in the magnetism. अब यहाँ पे मेरे पास जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप था, इट बिहेव एज ए स्मॉल ए पॉइंट मैग्नेटिक डाइपोल्स। तो ये मेरे पास एक पॉइंट मैग्नेटिक डाइपोल की तरफ बिहेव करता है। इफ वी कंसिडर्स द एक्स, इफ ये हम अप्रोक्सीमेशन अगर लेते हैं, तो ये लूप मेरे पास एक पॉइंट डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल की तरफ बिहेव करता है। सो नाउ तो यहाँ पे क्या, इफ आई कंपेयर विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, electric fields due to the electric dipoles, and in magnetism, the magnetic field which is produced by the current carrying loop. तो यहाँ पे मेरे पास इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेरे पास these are the minus q and plus q, these are the two charges, दो elementary charges था मेरे पास। इलेक्ट्रोस्टैटिक we have two elementary charges, electrostatics these elements are minus q and plus q. तो ये हम इसको यूनिट्स बोल लेते हैं, यूनिट्स, दैट इज माइनस q and plus q. And in magnetism we have
So we have only one element, elementary unit. एलिमेंट्री यूनिट क्या है मेरे पास? सर्कुलर लूप है। ये सर्कुलर लूप मेरे पास है, ठीक है। दिस बिहेव, ये सर्कुलर लूप है, तो ये एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। सिंस इन मैग्नेटिज्म देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ द मोनोपोल, जबकि मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेरे पास माइनस क्यू एंड प्लस को दी जाता है, मोनो चार्जेस मेरे पास है, एंड नो एग्जिस्टेंस इन मैग्नेटिज्म, नो एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोल्स। तो मोनोपोल का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है यहाँ पे। तो वन साइड इसका क्या हो जाता है, इफ आई सी फ्रॉम से, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड से देखता हूँ तो तो ये अगर मेरे पास, यस, तो इसमें मेरे पास करंट पास हो रहा है। इफ आई लुक फ्रॉम द राइट हैंड साइड तो एंटी क्लॉकवाइज करंट पास हो रहा है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट पास हो रहा है तो दिस ये लूप मेरे पास नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर, दिस इज लुक लाइक द नॉर्थ पोल। अगर मैं राइट हैंड साइड से देखूंगा तो इट बिहेव्स लाइक ए साउथ पोल। अगर यहाँ से देखूंगा तो इट अपीयर लाइक ए साउथ पोल, एंड फ्रॉम हियर इट अपीयर्स एज ए नॉर्थ पोल। तो इस तरह से मेरे पास, एंड दिस अपीयर साउथ पोल। तो इसलिए यहाँ पे मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब भी कोई मैग्नेट होगा देयर विल बी बोथ पोल साइमल्टेनियसली। So both pole appear simultaneously and look like that। अगर मेरे पास करंट, अगर राइट साइड से देखता हूँ, करंट की डायरेक्शन मेरे पास, अगर ऑब्वियसली क्या है, राइट साइड से देखने में इसमें करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखेगी, एंड दैट क्लॉकवाइज विल अपीयर लाइक ए साउथ पोल। तो ये मेरे पास है। इफ आई लुक फ्रॉम दिस साइड एंड इसको अगर राइट हैंड साइड से देखूंगा तो अपीयर्स करंट विल अपीयर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड दैट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल बिकम ए नॉर्थ पोल। तो इस तरह से हमारे पास वी हैव कंपेयर्स विद द एक्सप्रेशंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड दैट इन द मैग्नेटिज्म्स।